میں آپ سبھی کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل جہان من میں، اور ہم پیش کر رہے ہیں ایک پنہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آج ممدوحہ صاحبہ اپنی زندگی کا کون سا پنہ کھولنے جاتی ہیں۔ اب تک تو ہم نے جانا کہ ان کا بچپن عراق میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ گزرا، اور اس کے بعد ان کی شادی اڑیسہ کے ایک بہت چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی، جہاں انہوں نے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد پھر وہ طلاق شدہ ہو کر دلی آ گئی، اور دلی میں ان کی جو اسٹرگل تھی، جد و جہد تھی، وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آئیے جانتے ہیں آگے پھر کیا ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ آگے کیا ہوا مطلب ابھی تک تو آگے ہی ہے جی ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ جب مجھے 150 روپے کی نوکری ملی تھی، جو میں نے پہلے کہا، تو اس کے بعد میں نے کوشش کرنی شروع کی کہ کم از کم جو سرٹیفکیٹ مجھے عراق سے ملے تھے جی وہ یہاں ایکویولنٹ کرواؤں، لیکن پتہ چلا کہ یہاں نہیں ہوا، تو مجھے دوبارہ سے ہائر سیکنڈری ہائی اسکول کرنا پڑا، اور بچوں کو پالتے ہوئے اور نوکری کرتے ہوئے مجھے یہ کرنا پڑا۔ تو میں نے یہ کیا کہ پرائیویٹلی علی گڑھ یونیورسٹی سے اس زمانے میں ہوتا تھا پی یو سی ہوتا تھا، تو میں نے 10th کیا اور پی یو سی کیا، اور تو صبح یہاں دلی میں رہتی تھی اور علی گڑھ جاتی تھی کرنے کے لیے؟ جی میں دلی سے نوکری تو تھی لیکن ٹیمپرری تھی، کنٹریکٹ بیسس پہ تھی، تو میں صبح کی جاب کر کے، صبح اناؤنسمنٹ کر کے، نیوز پڑھ کے، سب کر کے 2 بجے سیدھے اسٹیشن جاتی تھی، وہاں سے 2:30 بجے 3 بجے کی ایک ٹرین چلتی تھی، شاید گومتی کہلاتی تھی۔ جی جی گومتی ابھی بھی جاتی ہے۔ ہاں ہاں، گومتی میں بیٹھتی تھی اور شام کو 6 بجے وہاں پہنچتی تھی، رات گزارتی تھی علی گڑھ میں کسی ایک میرے رشتہ دار کے یہاں، اور وہاں سے رات گزار کے وہی ٹرین سے لے کر وہ رات گزاری تک جتنا پڑھتی تھی میں، اور ٹرین ہی میں پڑھنا شروع کر دیتی تھی، اور اس کے بعد صبح جا کے میں ایگزام دیتی تھی، پیپر دیتی تھی، اور پھر وہاں سے پیپر دے کر 2 بجے کی وہاں سے ٹرین لے کے پھر دلی آتی تھی، سیدھے جاب پہ جاتی تھی، رات 2 بجے واپس آتی تھی گھر۔ اس میں ہمارے والد نے بہت بڑا رول ادا کیا، ہمارے والد نے بچوں کو سنبھالا، اور اس میں دیکھیے اس وقت حد سے بچی تو اس وقت 2-3 سال کی ہو چکی تھی، تو لیکن پھر بھی بچی تھی، بالکل بچی ہے، 2-3 سال کی بچی تو بہت چھوٹی چھوٹی بچی ہوتی ہے۔ جی ابو نے مرحوم نے سنبھالا، پھر ایک مجھے لیڈی اپنے شوہر سے بھاگی ہوئی آئی تھی، اس کو میں نے آگے آ گئی میرے پاس آ گئی، اس نے کہا مجھے، میں اور کہیں جانتی نہیں، آپ کو جانتی ہوں، تو میں نے کہا رہ جا، تو بھی رہو میں بھی رہا، تو اس نے میری بچی کو سمجھی، اپنی بچی سمجھ کے پالا، گھر سنبھالا، اس کی وجہ سے میں یہ کر سکی کہ صبح جاتی تھی 8 بجے، تو آپ نے وہاں سے 10th بھی کیا، پی یو سی بھی کیا، اور اس کے بعد آ کے جامعہ میں بی اے ایم اے عربک آنرس لے کر ایم اے عربک کر کے میں نے سرٹیفکیٹ لیا۔ پھر بی اے بھی کیا پورا آپ نے 3 سال کا کورس؟ الحمدللہ بی اے بھی کیا، ایم اے بھی کیا، اور یہ سب کیا، مجھے پتہ نہیں میں کیسے ہو گیا، یہ صرف اللہ کی دین ہے۔ حقیقت میں والد کی ایک بات مجھے وہ گانٹ اب تک باندھا کہ کچھ بھی کرو تمہارا دل صاف رہے، تم نماز نہ چھوڑو، اور میں نے نماز الحمدللہ آج تک نہیں چھوڑا، جب تک اور الحمدللہ نماز نہیں چھوڑا، اور دل کو مستحکم رکھا، اور یہ ایک دھن تھی کہ بچوں کو پالنا ہے، یہ نہیں سوچا تھا کہ کس طرح سے پالنا، وہ سب اللہ نے کروایا حقیقت میں۔ اس درمیان تو آپ کے بچے بھی اسکول جانے لگے؟ ہاں، وہ تو ہنستا تھا میرے بچے کہ ہماری امی بھی اسکول جاتی ہیں، ہم بھی اسکول جاتے ہیں، تو بچوں کو یہاں تیار کروں اور وہ اسکول جائیں، میں کالج جاتی تھی، وہ جاتے تھے ڈان باسکو میں اور دیو سماج میں، تو میں جاتی تھی جامعہ میں، بی اے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر کیا میں نے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد جاتی تھی آل انڈیا ریڈیو؟ پھر رات کو آل انڈیا ریڈیو کی نوکری ہوتی تھی، صبح کالج، رات کو آل انڈیا ریڈیو،
फिर सुबह कॉलेज, इस तरह का होते तो अभी ये बताइए कि ऑल इंडिया रेडियो में तो इनिशियली उन्होंने कहा कि भाई इनको सिर्फ 1 महीने के लिए रखेंगे इनके अनाउंसमेंट देखने के लिए, तो फिर उन्होंने आपको परमानेंट कब कर दिया, कैसे कर दिया? 1976 में ये निकला, एडवर्टीजमेंट आया जी 2 पोस्ट का, सॉरी 1 पोस्ट का, 1 पोस्ट का एडवर्टीजमेंट जो आया तो मैंने अपना दाखिल किया। उस वक्त तक कोई मेरे पास सर्टिफिकेट था ही नहीं, क्योंकि फिर भी मैं तो आपने कर भर रही दिया। थी, मैंने फिर भी भर दिया। कुछ लोग, अल्लाह की मर्जी होती है, तो कुछ लोग बहुत मेरा ख्याल कर रहे थे, उन्होंने मेरी पहली बार रिजेक्ट हुआ, दूसरी बार वो ले लिया गया। उस ज़माने में कंप्यूटर था ही नहीं, जी। तो 76 की बात कर रही हूँ। 76 में मेरा वो फाइल जो मैंने फॉर्म भरा था वो फॉर्म दाखिल हो गया, और उसके बाद ये एक टेस्ट होता है, इंग्लिश से अरबिक, अरबिक से इंग्लिश, ऑल इंडिया लेवल पर। वो तो आपने कर लिया होगा आराम से किया, और उसके बाद आराम से तो नहीं कहना चाहिए, उस ज़माने में भी ज़्यादा ट्रांसलेशन मतलब काफ़ी हाई फाई, उस ज़माने में न्यूज़पेपर्स जो होते थे काफ़ी हाई स्टैंडर्ड होता था। आजकल ऐसी है, लेकिन उस ज़माने में बहुत स्टैंडर्ड होता था। तो उसकी अरबी करना काफ़ी जदोजहद मेहनत हुई, उसमें मशक्क़त हुई, लेकिन वो किया। सुनिए, एक बात और भी उसमें बहुत ज़रूरी है ऐड करना। मेरे साथ एक नॉन मुस्लिम नलिनी चड्ढा थी, जो आजकल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। नलिनी चड्ढा और मैं, हम लोग थे, और 2-4 और बाहर के लोग थे। हम तो उस ज़माने में मेरी ना नलिनी चड्ढा को ज़्यादातर लोग जो ऑफिस वाले हैं वो ये कर रहे थे, फेवर कर रहे थे, और हमारे मौलवी हजरात जो थे वो हम दुआ की कर रहे थे। तो बहुत जदोजहद से, अल्लाह का शुक्र है, मैं पासिंग मार्क पा गई, लेकिन शी गॉट द हाईएस्ट मार्क। वो बहुत हाई मार्क पाए, क्योंकि वो एक तो वो पली नहीं, वो पैदा हुई, उसकी माँ बाप जाके सूडान में रह गए थे, तो वो पैदा हुई सूडान में, सारी पढ़ाई उसकी सूडान में, और वो सर्टिफिकेट बिल्कुल ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आई थी, तो उसको तो फ़ौरन ले लेने के चाहिए था। लेकिन इंटरव्यू में क्या हुआ, मेरा भी था इंटरव्यू, वो बाद में मुझे पहले बुलाया गया। अच्छा, मुझे बुलाने से पहले हम लोगों ने अपने रेडियो से देखा कि इजिप्शियन झंडे की गाड़ी आ गई, तो हम समझ गए इजिप्शियन एम्बेसडर आया होगा। और हमारे एक्टिंग सुपरवाइज़र, अल्लाह उनको मग़फ़िरत बख्शे, वो खड़े थे, उनको बुलाया गया। उन्होंने पहले तो मुझसे मजाक किया, बुलाने से पहले कहने लगे कि अब तू तो मर गई, अब ये तो इजिप्शियन एक्सेंट में बोलेगा, तू इराक़ी एक्सेंट में बोलेगी, वो तुझे समझेगा नहीं, तू उसको समझेगी। खैर, उनको बुलाया गया, महमूदुल हसन नदवी, उनको मग़फ़िरत बख्शे, उनको बुलाया गया। तो उनको तर्जुमा के लिए बुलाया गया, इसलिए कि इजिप्शियन एम्बेसडर को एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी नहीं आती थी। तो ये जो है ये अरबी जानते थे, तो ये वो जो हमारे डायरेक्टर जनरल जो ऑल इंडिया रेडियो के इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का आदमी, वो कह रहा है कि आपके बहुत गर्मी, शदीद गर्मी थी, जून जुलाई का महीना, आपको हमने इसमें बहुत तकलीफ़ दिया, इस गर्मी में आपको बुलाया, हम आपको चीज़ चाहते हैं। तो ये क्या तर्जुमा कर रहे हैं कि जो इराक़ी एक्सेंट किया अरबी बोल रही है, उसका ज़रा ख्याल रखना। वो कहता नाम, उसकी समझ में नहीं आया, उन्होंने फिर वो तर्जुमा कर दिया कि आपने गर्मी ऐसा हुआ। जब मैं इंटरव्यू में पहुंची तो हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझसे कहा, ओ ममदूहा माजिद, यू हैव कम फ्रॉम इराक। इसके कान खड़े हो गए, वो जो सुना था नहीं, उस वक्त उसकी समझ में आया। तो उसने इजिप्शियन एक्सेंट में ये कहा कि अच्छा तुम इराक से आई हो, अरबी में इजिप्शियन एक्सेंट से। तो मुझे भी कि पता नहीं मजाक सोचा, मैंने कहा कि हाँ, आपके इजिप्शियन में इस तरह का कहते हैं, हमारे इराक़ी में ये कहते हैं। अरे भैया वो न छोड़ बंदा मुझे, और मुस्तकिल वो पूरी हिस्ट्री वो पूछ लिया उसने, मैंने सब कर दिया। इसमें और एक बहुत अच्छा वाक़या हुआ, मुझसे पूछा गया, उस ज़माने में इंदिरा गांधी बहुत मशहूर हुई थी, 20 सूत्री प्रोग्राम था, चलाया था इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री प्रोग्राम, तो वो भी पूछा गया, वो भी हुआ। यूनाइटेड नेशन ने एक साल
76 की बात कर रही हूँ। 75 में यूनाइटेड नेशन ने वुमेन्स ईयर को और एक साल बढ़ाया था। 76 में वुमेन्स ईयर बनाया गया था, तो इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर। तो उन्होंने पूछा कि व्हाई डू यू थिंक कि 1 ईयर हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर ऑफ वुमेन्स ईयर। मेरी समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा कि हो सकता है कि वुमेन जो है ज़रा देर से समझती हैं। बहुत खुश लोग, 6 मर्दों के दरमियान में एक औरत ये कह रही है, तो ये लोग सब हंसे कर रहे, यू आर टॉकिंग अबाउट, आप सब मर्दों के प्रो में बोल रही। मैंने कहा आई एम विद मेन, तो मैं तो मर्दों के साथ हो तो कहना पड़ता, और एक हंसी हुई। तो सोचिए कि उसके बाद मुझे लिया गया, सिर्फ इसलिए लिया गया कि इजिप्शियन एम्बेसडर ये हो गया, जिद में आ गया कि मुझे ये और लड़की को। उसने कहा ना, उसको कहा गया कि इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट था नहीं दिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तो ये क्या सर्टिफिकेट लेके माइक में करिए, आपसे 2 साल आप इससे काम ले रहे हैं, और ये आपको सर्टिफिकेट दिखा रही है माइक में या बोल रही है, आपको क्या चाहिए? मैं इसके बगैर नहीं चाहूँगा, मैं इसी को लूँगा। चलिए, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह ताला का फजल होता है कि ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपकी परेशानी में आपके काम आते हैं। तो एक बहुत बड़ा सहारा होता है कि इंसान का, एक औरत का जॉब में रहना, फिर अपने कम से कम एक हिम्मत बनती है, एक खुद एतमादी पैदा होती है। वरना तो अक्सर बेशतर मैंने देखा है कि जब किसी के शौहर से इलादगी हो जाती है या शौहर का खुदा न खासा इंतकाल हो जाता है, औरतें फिर क्या करती हैं, सदका खैरात लेना, दूसरों के रहम करम पे जीना, तो वो कोई जिंदगी नहीं। पता कलाम, एक बात और है, औरतों की खासियत है कि वो अपने को सोचती हैं कि हम बहुत मजलूम हैं। बिल्कुल। देखिए, ये मजलूमियत नहीं है। अगर आप ये सोचें कि अल्लाह की मर्जी की वजह से हुई है ये बात, देखिए उस वक्त जिस वक्त मेरे साथ हुआ था, मैंने कभी ये सोचा नहीं कि अल्लाह की मर्जी। बाद में मुझे ख्याल आया कि सब कुछ जो कुछ मैं अभी आजकल भी ये सोच रही हूँ, जो कुछ मेरे साथ अब तक हुआ ये सब अल्लाह की मर्जी से हुआ। और अल्लाह बंदे को जानता है, किस बंदे ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो जब तक आप में वो विसत न हो, वो ताकत न हो, अल्लाह नहीं दे सकता आपको, उतनी ताकत नहीं देगा। जब तक तुम्हारी जितनी ताकत है संभाल लो हुई, तो अल्लाह ने वही दिया, मुझे उतनी ताकत उस जमाने में दिया। अब भी अगर वो चाहे कि मुझे नहीं वो चाहे नहीं, बल्कि अगर वो हालात मेरे पर हो तो शायद मुझे उठाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि उस वक्त अगर उसने हालात दिए तो उसने हिम्मत भी दी आपको। जी, और जवानी थी। बिल्कुल। तो नाजरीन, आपने देखा कि ममदूहा साहबा ने किस तरह हिम्मत हौसले से काम लिया और किस तरह उन्हें कदम ब कदम ऐसे लोग मिलते गए जिन्होंने उनका साथ दिया, उनके सहारा बने, और जिसकी बना पे वो एक कामयाब जिंदगी गुजार सकी। महरूमी, मजबूरी की जिंदगी और किसी के रहम करम पे जीने के बजाय उन्होंने ये इख्तियार किया कि वो खुद अपने पाँव पे खड़ी होंगी और वो एक खुद मुख्तार खातून बनेंगी, अपने बच्चों को इज्जत की जिंदगी देंगी। और इस तरह उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में एक अनाउंसर कम ट्रांसलेटर की जॉब की, और जिसमें उन्हें कभी ऑड आवर्स में भी जाने पड़ते थे। उसके लिए बहुत सी बातें भी उन्हें सहनी पड़ी, जो हो सकता है अगले एपिसोड में वो खुद हमें बताएंगी। तो स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।